Hello and welcome all dear student to this new video tutorial in which we will continue our discussion on nested for loop in Python part 2. In the previous video tutorial, we have discussed the nested for loop part 1 in which we have discussed what is nested for loop, how the nested for loop works and what are the different categories of programs that can be written using nested for loop. So today we will discuss category 1. Okay. So hope you all have gone through this video tutorial 13 that we have discussed previously. Its link is given below in the description. Okay. So this video is in continuation with this video tutorial 13. So let's see what are the contents of today's tutorial. First of all, we will discuss the homework given in tutorial 13. Okay, means in the previous video tutorial I have given you some homework. We will discuss that homework. Then we will discuss the categories of programs that can be written using nested for loop. So there are three categories. So today we will discuss only category 1. Today's topic. Now in the previous video also we have discussed what are the different categories of programs that can be written using nested for loop. There may be three categories of programs that can be written using nested for loop. One is category 1, to check and print a given number in a given range. To check and print a given number in a given range. Category 2, to print triangular patterns. And third is to print the sum of series in which either numerator or denominator contains factorial of a number. Today we will discuss only category 1. We will not discuss category 2 and category 3. Okay, so we will discuss these categories one by one in separate video tutorials. So today we are discussing to check and print a given number in a given range. Okay, now before moving on to this topic, let's quickly revise how the nested for loop works. Now see. Now how the nested for loop works. Suppose you have written the program for a in range 1, 3, 1, 4, 3, 1 and inside for loop. So what is nested for loop? When you write one for loop inside another for loop, it is known as nested for loop. Now here you are writing 1, 3, 1 and then you are printing a. Now this program, the purpose of this program is to explain the logic, how the nested loop works and nothing else. Okay, it is not doing any important thing, any particular object of this program. Okay, only the objective of this program is to explain the working of nested for loop. Now see, here is variable a and then stop value. Here is variable b and then stop value. And then there is output. Now initialize the loop चलना कहां से स्टार्ट होता है? For a in range 1, it means सबसे पहले 1 a में असाइन हुआ. So first of all 1 will be assigned to a. Stop value क्या दे रखी है आपने यहाँ पे? I am writing within bracket. You have given 4. और दूसरे की stop value क्या दे रखी है आपने? 3. So यहाँ पे चेक हो रहा है. If 1 equal to 4, नो यानी जैसे ही 1 4 के इक्वल हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं. यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 4 है, 1 4 के इक्वल नहीं है. इट मींस इफ 1 इक्वल टू 4, नो.
Okay, clear? नाउ द वैल्यू ऑफ बी, अब देखिए जैसे ही ये ए में 1 आया तो अब बी के अंदर कंट्रोल आया, अब बी की वैल्यू 1 हुई ना, वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 1। चेक हुआ, इफ 1 इक्वल टू 3, नो, तो आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, बी। हियर यू आर प्रिंटिंग, सॉरी प्रिंटिंग बी, तो बी प्रिंट हुआ 1। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एज सुन एज द कंट्रोल्स कम इनसाइड द इनर लूप, दिस इज आउटर लूप एंड दिस इज इनर लूप। जैसे ही कंट्रोल इनर लूप में आता है, फर्स्ट द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। इट मींस अब यहां पे इन दिस the value of b will be increased by 1. Now it will check again if 2 is equal to 3. No, then it will print 2, and again the value of b will be 3. If 3 equal to 3, yes, the inner loop will end. Inner loop ends. Keep this in mind. Okay, inner loop ends. It means जब a की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट क्या आया, 1 2, और जब b की वैल्यू 3 हुई तो इनर लूप बंद हुआ, लेकिन अब आउटर लूप बढ़ेगा। नाउ आउटर लूप विल बिकम 2। अब ये आउटर लूप वेरिएबल 1 से बढ़ेगा, 2 होगा। फिर चेक हो रहा है इफ 2 इक्वल टू 4, नो, तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर यही चेक होगा इफ 1 इक्वल टू 3, नो, तो यहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। अगेन b की वैल्यू क्या होगी, 2। इफ 2 इक्वल टू 3, नो, तो यहां 2 प्रिंट होगा। अगेन the value of b will be 3. If 3 equal to 3, स्टॉप वैल्यू के इक्वल हो गई, यस, तो यहां पे इनर लूप एंड्स। फिर अब यहां पे क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ a इज 3। नाउ 3 इक्वल टू 4, नो, अब b की वैल्यू फिर 1 हुई। इफ 1 इक्वल टू 3, नो, तो 1 प्रिंट हुई। अब b की वैल्यू फिर हुई 2। इफ 2 इक्वल टू 3, नो, 2 प्रिंट हुई। इफ नाउ b की वैल्यू हुई 3, इफ 3 इक्वल टू 3, यस, इनर लूप एंड्स। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 4। इफ 4 इक्वल टू 4, यस, नाउ आउटर लूप एंड्स, आउटर लूप एंड्स। तो अगर आप देखें तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, फाइनल आउटपुट विल बी, फाइनल आउटपुट देखिएगा क्या होगा, when a is equal to 1, then output is 1 2. When a equal to 2, then output is 1 2. When a equal to 3, then output is 1 2. It means final output क्या आया, 1 2 1 2, sorry 1 2 1 2. This is the final output. ओके, तो इस तरह एग्जीक्यूशन होता है। Okay, so now let us discuss category 1, to check and print a given number in a given range. Now what is given number? Given, I told you that three types of programs are very important. First, how to check prime number, second, how to check perfect number, and third is to find the factorial. Because these three programs will be used frequently in nested for loop. Now suppose if I ask you to print, write a program to print all prime numbers from
1 to 25. It means previously we have done what we have done. We have done the program on prime number, but we are taking input of one number and we are checking it whether it is prime or not. Means we are taking input of only single number and we are checking whether that number is prime or not. Here we are not checking any number. We are printing all prime numbers. We are printing all prime numbers from 1 to 25. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are the prime numbers that comes between 1 and 25. So your program should get the following output. Now let's revise quickly how to check a prime number. You all know how to check a prime number? See here I am writing how to check a prime number. First of all, you take input of number. Input, int, input, enter number. Then you take one variable count as 0 because logic क्या होती है? What is the logic of checking prime number? What is the logic? Prime number have only two factors. Okay. So first count the factors of a number. The logic is first count the factors of a number, and third logic is then check whether count of factors is 2 or not. If it is 2, then it is prime number. So what we have done, we have taken input of number, then we have taken count as 0. Now for a in range, now this I am discussing what is prime number. After that we will discuss how to print all prime numbers from 1 to 25. Okay. Now 1 range n plus 1 उस नंबर तक लूप चलाते हैं 1. Then you check if n mod a equal to 0. It means इसका मतलब हो गया if colon, it means if a is factor of n, if a is factor of n अगर है then you count the variable, means you increment the variable. Here you are incrementing the variable by 1. After the loop is terminated, जब loop terminate हो जाता है तो आप check करते हैं if count equal to 2. If it is true, it means number is prime, else number is not prime. Now run this program. This is the program window. This is the output window. Give 2 prime. Give 6 not prime. Give 13 prime. Give 21 not prime. So this is the program to check whether a single number is prime or not. Okay. ये क्या चेक कर रहा है कि एक सिंगल नंबर प्राइम है या नहीं. नाउ इन दिस प्रोग्राम you have to check all prime numbers from 1 to 25. The range is given. It means you have to repeat. It means you have to repeat the following code 25 times. It means ये 25 times repeat होनी चाहिए ये चीज. तो कैसे होगा? First of all,
इनपुट नहीं लेना है, इट मीन्स आप इनपुट रिमूव करोगे, पहली चीज। नाउ यू विल टेक काउंट 0। तो इनपुट क्यों हटाया आपने? क्योंकि इनपुट दिया नहीं है, रेंज इज गिवन। अब आप क्या करोगे, इस पूरे प्रोग्राम को एक आउटर लूप में लिखोगे। फॉर ए का लूप चला रहे हैं, फॉर ए इन रेंज 1 to 25। ये चीज समझ आई? दिस इज आउटर लूप। आउटर लूप is executed for a given range। ऐसे प्रोग्राम्स में आउटर लूप गिवन रेंज के लिए होता है। सो द रेंज इज गिवन इज 1 to 25, तो आउटर लूप ये चलाया। अब आउटर लूप के अंदर आप इनर लूप लिखोगे। अब आपने क्या किया, आउटर लूप वेरिएबल का नाम ए रखा है, तो इनर लूप वेरिएबल का नाम क्या रख लोगे, बी। चेंजेस देखते आइएगा, मैं एक एक करके चेंजेस कर रहा हूं। पहली चीज आपने क्या रिमूव करी, इनपुट हटाया, क्योंकि यहाँ पे रेंज दी हुई है 1 से 25 के बीच। दूसरा, आपने एक आउटर लूप लगाया 1 से 25, क्योंकि आपको ये प्रोसेस 25 टाइम्स रिपीट करनी है। फिर आपने आउटर लूप का वेरिएबल का नाम ए रखा, तो इनर का नाम रख दिया बी। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, अब देयर इज नो एन। अब यहाँ पे n+1 लिखा है, तो ये n+1 नहीं होगा, यहाँ पे ये हटेगा, तो यहाँ फिल क्या होगा। तो एक चीज मैं बहुत बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन नेस्टेड लूप प्रोग्राम द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटर लूप। यानी नेस्टेड लूप से प्रोग्राम में जो इनर लूप होता है वो हर समय आउटर के रिस्पेक्ट में चलता है। इट मींस इनर लूप के अंदर आउटर लूप का वेरिएबल आएगा। सो हेयर यू हैव टू फाइंड द इसमें आपको किसको चेक करना है, प्राइम है या नहीं, ए को चेक करना है। जब ए 1 होगा तो आप 1 चेक करोगे। यहां देखिए लॉजिक देखिएगा, see the logic, you have to check, means inside inner loop you have to check whether a is prime or not, where a is prime or not। when a equal to 1, then check 1 is prime or not। when a equal to 2, then check 2 is prime or not। when a equal to 3, then check whether 3 is prime or not, and so on। Okay, so when a equal to 25, then check 25 is prime or not। So is that clear? तो याद रखिएगा, नेस्टेड लूप के प्रोग्राम में जो इनर लूप होता है वो आउटर के रिस्पेक्ट में चलता है। इट मींस हियर दिस लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 to a। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 1, a या 1, a+1, a+1 लिखेंगे। तो इनर लूप is executed in respect of outer loop। अब यहां पे आप लिखते थे, क्या लिखते थे, देखिए ये ले आए, if n mod a equal to 0, what you are writing, if a mod n equal to 0। now there is no n। अब यहां पे n तो है नहीं, तो आप किसको चेक कर रहे हो, प्राइम है या नहीं, a को चेक करो। इफ a mod b इज इक्वल टू 0, इट मींस इसका मतलब हो गया इफ b इज ए फैक्टर ऑफ a, अगर है देन काउंट इक्वल टू काउंट +1।
Okay, so if b is a factor of a, then count equal to count plus 1. जब आप इस लूप से बाहर आ जाए, देखिए ये इफ से बाहर आए, ये इनर लूप से बाहर आए, जब इनर लूप से बाहर आए तो आपने चेक किया इफ काउंट इक्वल टू 2, अगर 2 है तो काउंट इक्वल टू 2 है तो आपको ये प्रिंट नहीं करना है प्राइम या नॉट प्राइम, मैसे नहीं प्रिंट करना है. इफ काउंट इक्वल टू 2 इट मींस ए इज प्राइम, तो आप चेक प्रिंट करोगे प्राइम प्रिंट ए मींस ए इज प्राइम. हो गया, अपना प्रोग्राम बन गया. ओके, लेट्स सी हाउ इज इट एक्सिक्यूटेड. लॉजिक समझते हैं क्या है, समझिएगा. नाउ रिमेंबर दिस प्रोग्राम. आउटर लूप चला रहे हैं 1 से 26, इसको हटा देते हैं. ये रहा हमारा प्रोग्राम, इसको हटा देते हैं. इस समय ये लूप है, स्टॉप वैल्यू क्या दी हुई है 26. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, बी का लूप चला रहे हैं 1 से लेके a+1. बी का लूप चला रहे हैं कहां तक, a+1 तक. याद रखिएगा बी का लूप चल रहा है a+1 तक. सो यहाँ पे a क्या है 1, तो b का लूप होगा 1, सॉरी स्टॉप वैल्यू क्या है b की a+1, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 तक ही जाएगा, यानी ये 2 तक जाएगा, क्योंकि बिकॉज a इज 1 और ये 1 + 1 क्या देगा 2, तो ये 2 तक जाएगा. अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ a mod b इक्वल टू 0, यानी 1, a क्या था 1 mod 1 इक्वल टू 0, 1 mod 1 इक्वल टू 0. यस, तो काउंट की वैल्यू क्या कर दी 1. अगेन आपको बताया था इनर लूप पहले चलता है. नाउ b विल बी 2, b2 होगी, स्टॉप वैल्यू क्या थी 2. इनर लूप एंड्स, तो अब काउंट की वैल्यू क्या थी 2. जब इनर लूप बंद हुआ, देखिए यही किया हमने, पहले हमने क्या किया, क्योंकि ये सब हटा देते हैं. फिर से समझिए, पहले हमने आउटर लूप चलाया रेंज के लिए, रेंज दी हुई थी 1 से 25. ओके, देन बी का लूप चलाया 1 से लेके a+1. याद रखिएगा नेस्टेड फॉर लूप के प्रोग्राम में इनर लूप आउटर के रिस्पेक्ट में चलता है, तो फैक्टोरियल के ये इसके प्राइम नंबर प्रोग्राम में इनर लूप a को चेक करेगा प्राइम है या नहीं, तो इसलिए हमने लूप चलाया 1 से a+1 तक. फिर हम a को चेक कर रहे हैं b के, यानी a को मॉड करेंगे b से कि क्या b a का फैक्टर है, तो काउंट करेंगे. यही किया हमने, यहां भी देखिए काउंट कर लिया. जब इनर लूप से बाहर आए तो क्या चेक कर रहे हैं, क्या काउंट 2 है. जब इससे बाहर आए तो चेक किया इफ काउंट इक्वल टू 2, क्या चेक किया इफ काउंट इक्वल टू 2, नो, तो इसका मतलब a इज नॉट प्राइम. ठीक है, काउंट ट्रू नहीं है तो यानी a इज नॉट प्राइम, तो प्रिंट ही नहीं किया. देन प्रिंट नथिंग. ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम देखिए क्या हो रही है. अब a की वैल्यू हुई 2, स्टॉप वैल्यू क्या दी थी 26, अब b की वैल्यू फिर क्या हुई 1. ठीक, अब स्टॉप वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 2 + 1 3, तो इसकी स्टॉप वैल्यू हो गई 2 + 1 3. नहीं, अब यहां पे चेक हुआ 2 mod 1 0 है. यस, तो काउंट हमने क्या कर दी. अब इसमें प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि हमने लिखा है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. इट मींस काउंट तो पहले से ही 1 था, तो इसलिए 1 में 1 जुड़ गया, क्या हो गया 2. काउंट पहले से क्या था 1, तो 1 में 1 जुड़ के काउंट क्या हो गई 2. अगेन b की वैल्यू हुई 2, स्टॉप वैल्यू क्या थी 3. फिर चेक हुआ 2 mod 2 इक्वल टू 0. यस, तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, +1 हो गया क्या हो गया 3.
फिर b की वैल्यू हुई 3, यहां पे इनर लूप बंद हो गया, इनर लूप एंडेड। अब आपने चेक किया इससे बाहर आके कि इफ काउंट इक्वल टू 2, आउटपुट मिल रहा है नो। क्यों? क्योंकि यहां पे काउंट की वैल्यू क्या है 3। अब यहां पे लॉजिक गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। और यहां पे काउंट क्या आ रही है 3। ऐसे क्यों आया? क्यों? क्योंकि काउंट में प्रीवियस वैल्यू थी वो एक ऐड हो गई, जबकि ये प्रीवियस वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो 1 का फैक्टर था। ये गड़बड़ हो रहा है, तो हमें ये चीज ठीक करनी है। इसका मतलब 2 प्राइम होने के बाद भी प्रिंट नहीं हुआ, तो एक लॉजिक ये गलत हो रही है। अब एक वैल्यू हुई 3, आउटर कंडीशन दी थी, फिर भी 1 हुआ, चेक हुआ, ये सॉरी 1 हुआ। एंड स्टॉप वैल्यू क्या थी यहाँ पे? स्टॉप वैल्यू यहाँ पे हो गई 3 + 1 4। नाउ यहाँ पे चेक हो रहा है 3 mod 1 0 है, यस 0 है। तो अब काउंट क्या होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, लेकिन पहले से काउंट क्या है 3, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। सॉरी, यहां पे क्या हो गया 3 + 1 = 4 हो गया। फिर देखिए b की वैल्यू हुई 2, आउट कंडीशन क्या थी 4, यहां चेक हुआ 4 mod 1 = 0, यस। तो यहां पे 4 + 1 हो गया, सॉरी if3 गलत कर रहे हैं, if 3 mod 2 = 0, नो, तब तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए इसकी वैल्यू हुई 3, कंडीशन थी 4 आउटर, नाउ 3 mod 3 = 0, यस। अब काउंट पहले से क्या था 4 + 1 हो गया 5, जबकि 3 के भी कितने फैक्टर होते हैं 2। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रीवियस नंबर की जो काउंट है, जब 1 की जो काउंट मिली थी 1, फिर 2 की जो काउंट मिली थी वो बातें में ऐड होती आ रही है। इट मींस एक लॉजिकल एरर आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप प्रिंट ए कर दो तो आउटर लूप के अंदर इफ के बाहर आपको काउंट को क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? हमें काउंट को दोबारा 0 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हर बार जो काउंट की प्रीवियस वैल्यू है वो आगे ऐड होती आ रही है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट गलत हो रहा है। तो इसलिए हमें उसे बार बार क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे चलता है, फिर से देखिएगा कैसे। 1 तक तो हो गया, ओके, हम यहां से डिलीट करके फिर से कर रहे हैं। चलिए देखिए, नाउ काउंट की वैल्यू क्या थी 1, जब हमारा नया नंबर आया 2, ये 26 हुआ, ये आउटर था, ए की वैल्यू थी 26 हुआ, अब बी की वैल्यू 1 हुई, तो काउंट इस समय फिर से 0 हो चुका है, ओके। नाउ यहाँ पे b की वैल्यू 1 है और ये लूप चल रहा है 1 + 1 2, यानी 2 + 1 3 तक स्टॉप वैल्यू है। यहाँ पे चेक हुआ इफ 2 mod 1 = 0, आंसर मिला यस। इफ 2 mod 1 = 0, तो आंसर मिला हमें क्या यस, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। फिर देखिए यहाँ पे हुई 2, ये 3 तक चलेगा, इफ 2 mod 2 = 0, द आंसर इज यस, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1 + 1 2। फिर जब b की वैल्यू हुई 3, तो ये हो गया 3, इनर लूप एंड हो गया। जब इनर लूप एंड हुआ तो उसके बाद हम लोग ने चेक किया, कंडीशन चेक करी कि क्या कंडीशन चेक करी कि क्या इफ काउंट इज इक्वल टू 2, इस समय काउंट की वैल्यू क्या थी 2, यस, देन प्रिंट 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। इट मीन्स हमारा एक प्राइम नंबर प्रिंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से 3,
ये 26 तक चलेगा। अगेन बी की वैल्यू क्या हुई 1, ये लूप चला आपका कहां तक, ये लूप चला आपका 4 तक। यहां चेक हुआ कंडीशन इफ 3 mod 1 इक्वल टू 0। अब काउंट यहां पे फिर से 0 हो चुका है, अगर है तो काउंट हो गया 1। फिर इसकी वैल्यू हुई 2 बी की, 4 तक नहीं आया तो चेक हुआ इफ 2 mod सॉरी इफ 3 mod 2 इक्वल टू 0, नो, काउंट की वैल्यू 1 ही रही। फिर इसकी वैल्यू हुई 3, चेक हुआ इफ 3 mod 3 इक्वल टू 0, यस, तो इसकी वैल्यू हो गई काउंट की 2। और फिर जब ये हुआ 4 हुआ तो इनर लूप एंड्स, ये एंड हो गया। फिर जब इसके बाहर चेक किया, यहां पे बाहर चेक किया इफ काउंट इक्वल टू 2, यस, क्योंकि काउंट क्या थी 2, देन प्रिंट 3। तो इस तरीके से एक एक करके प्राइम नंबर प्रिंट होते जाएंगे। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहले एक बार जल्दी से समझ लीजिए, जो कि बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दिस नेस्टेड लूप इज इन योर सिलेबस ऑल्सो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काउंट की वैल्यू ले ली 0, कोई इनपुट नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि रेंज दी हुई है। रेंज क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से 25 तक के नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं। तो काउंट क्या हो गई 0, लूप चलाया फॉर ए इन रेंज 1 to 25, ये हो गया आपका आउटर लूप। फिर इनर लूप चलता है ए के लिए, याद रखिएगा अगर ए आउटर वेरिएबल का नाम ए है तो इनर लूप चलेगा ए, यानी ये चेक करेगा ए इज प्राइम और नॉट। तो इट विल चेक वेदर ए इज प्राइम और नॉट, वेयर ए इज प्राइम। तो अब आप ए को चेक करोगे बी से मॉड करके तो काउंट बढ़ाते जाओगे। जब आप इफ से बाहर आओगे तो आप इफ से बाहर आए और ऑफ इनर लूप से बाहर आए, तो ये इनर लूप से बाहर है, यहां पे याद रखिएगा आउटसाइड इनर लूप। चेक करिएगा काउंट हुआ, इट मींस प्रिंट ए, और काउंट को फिर से 0 करेंगे, व्हाई, सो दैट इट्स वैल्यू is not added again and again. Okay, now run this program, you will get the output. See, it is printing all even numbers from 1 to 25. Now if I have to exceed the range, if I ask you 1 to 50, then here write 51, and where you are printing write and equal to comma, so it will print the output on a single line. See, okay, so what you have to do, you have to do this second program on your own. You have to print all perfect numbers from 1 to 50. For example, there are only two numbers from 1 to 50 that are perfect, 6 and 25, 28, and we have already discussed that perfect number is a number which is whose sum of factors is equal to the number excluding the number. ठीक है, and this again two more questions in your homework. You have to print the table of all numbers. अब हम किसी एक नंबर की टेबल नहीं कर रहे हैं, you have to print the table of all numbers from 1 to 10. Example 2, you have to print the factorial of all numbers from 1 to 10. Okay, so that's all for today. These are the two programs that you have to do. So that's all for today. In the next video lecture, we will continue with the nested for loop in Python part 3. Thank you for watching.
Have a nice day. Take care and goodbye.